Now look at this written on the screen. A sequence containing finite number of terms is called a finite sequence. For example, sequence of ancestors is a finite sequence since it contains 10 terms, a fixed number. A sequence is called infinite if it is not a finite sequence. For example, the sequence of successive quotients mentioned above is an infinite sequence, infinite in the sense that it never ends. So two words are explained here, finite sequence and infinite sequence. We already know about that thing, finite. Finite means countable. जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे दैट इज कॉल्ड एज फाइनाइट. जैसे एंसेस्टर की 10 जनरेशंस थी तो 10 काउंटेबल था, राइट. So it is the example an infinite sequence. Suppose if I take the sequence of even numbers 2, 4, 6, 8, 10 and so on, it goes up to the infinite. Uncountable even numbers are there, right? So that sequence is called as infinite sequence, right? Infinite in sense that it never ends, जो कभी end नहीं होगी, right? I hope this thing is clear to you. Now let's move forward. Look at this. Let us discuss about the Fibonacci sequence here. Fibonacci, the photo I have shown to you at the starting, that person name is Fibonacci. तो Fibonacci ने एक sequence दी थी. Let us discuss about that sequence here. Often it is possible to express the rule which yield the various terms of the sequence in terms of algebraic formula. Consider for instance the sequence of even natural number. नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस देखिए, इवन नंबर्स की 2, 4, 6. तो A1 क्या है 2, A2 इज 4, A3 इज 6, देन 8. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 2. तो देखेंगे 2 फिक्स आ रहा है. सपोज 23 देखा 46, 46 में भी 2 फिक्स है. ये नंबर चेंज हो रहे हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 23 आ गया. 48 को देखेंगे तो 2 इंटू 24. सो लाइक दिस एंड सो ऑन. In fact, we see that nth term of this sequence can be written as an equal to 2n. तो इसके nth term कैसे लिख सकते हैं? Let me write this on this side. तो पहली टर्म आ रही है 2 into 1, दूसरी टर्म आ रही है 2 into 2, तीसरी टर्म आ रही है 2 into 3, फोर्थ टर्म 2 into 4 एंड सो ऑन. तो जब nth टर्म आएगी तो 2 तो फिक्स रहेगा एंड इट कैन बी रिटन एज 2 into n. तो फर्स्ट टर्म में 1 आता है यहाँ पे, सेकंड टर्म में 2 आता है, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, तो nth टर्म में n. So the nth term in this case is nth term in this case is 2n, right? What is n here? N is a natural number. Similarly, odd numbers की अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, so odd number की सीक्वेंस में क्या होगा, 2n minus 1 आएगी nth term, 2n minus 1. कैसे? Let me explain it here. जैसे 1 आएगा 3, 5 and then 7 and suppose यहाँ पे एक नंबर आएगा nth नंबर पे, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 यहाँ पे फिक्स है और -1, 2n में से 2n तो 2 आएगा, n को अगर 1 रखेंगे तो 2n minus 1. तो देखो यहाँ पे इसको लेट मी राइट इट लाइक दिस, 2 into 1 minus 1. इट कैन बी रिटन एज 2 into 2 minus 1. इट कैन बी रिटन एज 2 into 3 minus 1. इट कैन बी रिटन एज 2 into 4, 4 to 8, 8 minus 1 7. सपोज nth टर्म है अगर यहाँ पे nth टर्म, तो इसमें एक पैटर्न देखिए आप, यहाँ पे पैटर्न क्या है, 2 तो फिक्स है हर जगह पे और ये -1 भी फिक्स है. क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 1, 2, 3, 4. जैसे फोर्थ टर्म है तो 4 आ जाता है, थर्ड टर्म है तो 3 आ जाता है, और अगर nth टर्म होगा तो क्या आ जाएगा, 2 फिक्स है, 2n -1 भी फिक्स है. तो nth टर्म ओड नंबर के सीक्वेंस में ये होती है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. In some cases, an arrangement of numbers such as 1, 1, 2, 3, 5, 8 and no visible pattern, but the sequence is generated by the recurrence relation given by. यहाँ पे अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे, जैसे 1 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, तो इसमें हमें देख के इसको ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी पैटर्न नहीं बना रही है, राइट. तो यहाँ पे पैटर्न हिडन है, पैटर्न इज नॉट विजिबल हियर.
तो बेसिकली ये पैटर्न बना रही है। देखो A1 और A2 1 है, A3 क्या है, व्हाट इज A3 इन दिस केस? लेट मी राइट इट हियर। पहला 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, इसी तरह से सिक्स्थ टर्म है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे A1 तो 1 है, A2 भी 1 है, A3 अगर देखेंगे वो इन दोनों का सम है। A2 A3 क्या है, A2 प्लस A1, तो ये क्या है, इज इक्वल टू 2। अब आप A4 देखिए, A4 क्या है, A4 आ रहा है 3, तो 3 कैसे आया होगा, A2 का और A3 का सम है ये, A2 और A3 का सम है, A2 प्लस A3 3 आ गया। A5 देखिए, तो ये करता क्या है, पीछे वाली दो टर्म का सम ले लेता है, A3 और A4 का सम है, तो 3 प्लस 2 5 आ गया यहाँ पे देखिए। अब सिक्स टर्म में क्या होगा, व्हाट इज सिक्स टर्म, किस किस का सम होगा, A4 और A5 का सम होगा। तो A4 एंड A5 इज 8, 3 प्लस 5, 3 को और 5 को ऐड करेंगे 8। तो एक पैटर्न बन रहा है, ऐड करता जा रहा है सभी को, राइट। सो A1 तो 1 था, A2 क्या होगा, पीछे वाली दो टर्म का सम होता है, तो A2 में ये A1 के इक्वल ही आ गया, क्योंकि A0 तो कोई टर्म थी ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू A1, और फिर ये दो दो टर्म्स का सम हो जाएगा, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस, अगर यहाँ पे मैं nth टर्म का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, an इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे आप। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ये वाला पैटर्न से इससे बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, A1 और A2 का सम होगा, राइट। अब अगर यहाँ पे 3 है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, A3 इज इक्वल टू A, यहाँ पे लिख सकता हूँ 3, यहाँ पे 3, तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे ये लाने के लिए, 3 माइनस 2, तभी तो 1 आएगा, और 2 लाने के लिए 3 माइनस 1। तो आप nth टर्म का फॉर्मूला देखिए, लेट मी फॉर्म द फॉर्मूला फॉर nth टर्म हियर। सो अगर मैं यहाँ पे a n फाइंड करना चाहूं, तो यहाँ पे a होगा, फिर प्लस होगा, और यहाँ पे a होगा। तो यहाँ पे अगर 3 था तो यहाँ पे 3 3 आया था, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n n आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, -2, तो n -2, यहाँ पे क्या हुआ था, -1, तो n -1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो इससे हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे an है, तो an से एक कम और दो कम वाली टर्म का सम हम लोग यहाँ पे लेंगे, राइट। So this sequence is called as Fibonacci sequence. इस सीक्वेंस को ही फिबोनाकी सीक्वेंस हम लोग बोलते हैं। I hope this Fibonacci sequence is clear to you. Now let's move forward. Look at this written on the screen. Nishtha Gar, could you please read it? In the sequence of the primes 2, 3, 5, 7, we find that there is no formula for the nth prime. Such sequence can only be described by verbal description. In every sequence, we should not expect that its term will necessarily be given by a specific formula. However, we expect a theoretical scheme or a rule for generating the terms A1, A2, A3 to AN and so on in succession. In views of the above, a sequence can be regarded as a function whose domain is the set of natural numbers or some subset of it. Sometimes we use the functional notation a to the power n for an. Okay. तो एक चीज तो इन्होंने यहाँ पे ये बताई है, जो कभी कभी an को an कैन ऑल्सो बी रिटन एज a ब्रैकेट n, राइट। एक चीज ये बता रहे हैं कि जैसे प्राइम नंबर्स आप देखते हैं 2, 3, 5, 7, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है nth प्राइम के लिए, राइट। तो nth प्राइम के लिए जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला ही वहां पे हो जाए। सो दिस इज द डिस्क्राइब्ड बाय वर्बल डिस्क्रिप्शन, राइट। बट वी एक्सपेक्ट अ थ्योरेटिकल स्कीम और रूल फॉर जनरेटिंग द टर्म्स। तो एक थ्योरेटिकल स्कीम्स इन सक्सेशन, तो एक सीक्वेंस यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, so we can say that sequence is a
फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है whose domain is a set of natural number, जो नेचुरल नंबर्स की उसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। जैसे हमने पीछे देखा इवन नंबर्स का क्या होता है 2n, तो एक फंक्शन है, राइट, n इज अ नेचुरल नंबर। तो हमने ओड नंबर्स के लिए देखा 2n minus 1, so this is it form a sequence of even number, it form a sequence of odd number, and what is this n is a natural number। तो ये नेचुरल नंबर्स का एक डोमेन इसका क्या होता है नेचुरल नंबर्स और सम सबसेट ऑफ इट, या नेचुरल नंबर्स के कुछ सबसेट, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वर्ड यूज इन द नेम ऑफ द चैप्टर सीरीज। अभी हम लोगों ने सीक्वेंस को देखा है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड दैट थिंग। नाउ लेट अस लुक एट दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड series used in the name of the chapter? Divya, could you please read this written on the screen? Yes, sir. Let A1, A2, A3 and so on, AN be a given sequence. Then the expression A1 plus A2 plus A3 plus so on plus AN plus so on is called the series associated with the given sequence. The series is finite or infinite according as the given sequence is finite or infinite. Series are often represented in compact form called sigma notation, using the Greek letter sigma as means of indicating the summation involved. Thus, the series A1 plus A2 plus A3 plus so on plus AN is abbreviated as sigma and sigma AK and A is equals to 1. Okay, let me explain this thing. So basically series क्या होती है, सीक्वेंस हम लोगों ने देखा, सीक्वेंस इज अ collection of numbers, sequence is a collection of numbers, sequence is a collection of numbers put in a particular एक पैटर्न में रखते हैं तो प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें आइडेंटिफाई कर सके फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। सपोज इफ यू लुक एट द एग्जांपल हियर, जैसे सीक्वेंस लिखी हुई है 1 2 3 4 AN, राइट। अगर सीक्वेंस के बीच में प्लस का साइन लगा दें, सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगा दें, देन दैट इज कॉल्ड एज, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज सीरीज, उसको सीरीज बोलते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टू यू। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एक सीक्वेंस लिखी हुई है 2 4 6 8 10 12, so this is a sequence, right? Suppose if it is a sequence, ये एक सीक्वेंस है। सो व्हाट इज सीरीज? तो सीरीज क्या होगा, इफ यू पुट द प्लस साइन इन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को अगर आप प्लस का साइन इन बिटवीन उनके लगा देते हैं, इफ यू पुट द प्लस साइन इन बिटवीन दिस, सो इट बिकम सीरीज। आई होप दिस वर्ड सीरीज इज क्लियर टू यू नाउ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस इज विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन क्लियरली, राइट। नाउ दिस सीरीज, ये सीरीज जो है फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन, अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज फाइनाइट होगी, और सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज इनफाइनाइट होगी, ठीक है। सीरीज को नोटेशन कैसे करते हैं, सीरीज को नोटेशन करते हैं सिग्मा नोटेशन। सिग्मा मतलब ये एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज सिग्मा, इसका नाम है सिग्मा। इसको समेशन भी बोलते हैं, समेशन, राइट। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है सीरीज को, तो जैसे सीरीज लिखी हुई है यहाँ पे A1 A2 A3 AN, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, like this, right? So let me explain this symbol to you with the help of example. सपोज एक हमारे पास यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, A1 है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, और प्लस AN, nth एलिमेंट तक है। तो इसको मैं, इसको इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिख के इसको हम लोग समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने समेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने AN लास्ट टर्म। अब ये कहां से शुरू हुआ था, 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था और n तक आया है। तो यहाँ पे मैं इसको डिनोट करूंगा, n जो स्टार्ट हुआ है, n जो स्टार्ट हुआ है वो 1 से स्टार्ट हुआ है और n पे जाके रुका है। तो लेट मी रिप्रेजेंट इट विद k, इसको मैं k से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, AK,
इसको मैं ए के लिख लूं अगर, तो यहाँ पे मैं इसको के लिख सकता हूँ, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको के इक्वल टू 1 से शुरू हुआ और इससे एन तक गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे ये एलिमेंट देखो, इसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके कितने एलिमेंट है, 6, ठीक है। और यहाँ पे लिख लिया मैंने ए एन, ठीक है। ए एन क्या आएगा इसका, nth टर्म क्या आती है इसकी, ए एन आता है इसका 2n, क्योंकि इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स का ए एन होता है 2n, राइट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझा देता हूं आपको। तो ये समेशन साइन का काम क्या होता है, ये पहले k है यहाँ पे और ये समेशन है, दो चीजें हैं, k है और समेशन है। तो पहले k अपनी वैल्यू पुट करके आता है, जहां पे भी इसको इट्स नॉट इट्स k। सो अगर यहाँ पे k पहले 1 पुट करके आएगा, जहां पे भी इसको k मिलेगा वहां पे 1 रखेगा, तो ये क्या मिलेगा इसको, a1। फिर समेशन साइन का काम क्या होता है, इस समेशन साइन का काम होता है प्लस का साइन लगाना। फिर ये k को कहता है मैंने प्लस का साइन लगा दिया है, अब आप जाके k की नेक्स्ट वैल्यू रखे आओ, तो k जहां पे इसको k मिलेगा वहां पे ये 2 रख देगा, a2, ठीक है। फिर वापस आएगा, समेशन को बोलेगा प्लस का साइन लगा के आओ, तो प्लस का साइन लगा देगा। फिर k अपनी नेक्स्ट वैल्यू पुट करेगा 3, फिर समेशन प्लस का साइन लगा देगा। k अपनी नेक्स्ट वैल्यू पुट करेगा 4, समेशन प्लस का साइन लगा देगा। k नेक्स्ट वैल्यू 5, समेशन प्लस का साइन लगा देगा। k वैल्यू पुट करेगा 6, फिर समेशन प्लस का साइन लगा देगा, और समेशन बोलेगा k अपनी नेक्स्ट वैल्यू रखे आओ, तो k बोलेगा मेरी वैल्यूज खत्म हो गई है, मुझे 6 तक ही वैल्यूज रखनी थी, ठीक है। तो फिर ये प्लस का साइन रिमूव हो जाएगा और ये 6 टर्म्स का सम आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, this summation and this thing, right? If you look at this remark here, when the series is used, it refer to the indicated sum, not to the sum itself. For example, जैसे 1 3 5 7 is a finite series with 4 terms. When we use the phrase sum of a series, we will mean the number that result from adding the term. The sum of the series is 16. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, when the series is used it refer to the indicated sum not to the sum itself। तो जब इसको बोलेंगे, अगर यहाँ पे फाइनाइट सीरीज है 4 नंबर की, इसका सम कितना आएगा, इसको जोड़ने के बाद 1 7 + 3 10 16 आएगा। तो इसको बोलेंगे इट इज द सम ऑफ द सीरीज इज 16, ये सीरीज का सम 16 है, राइट। सम ऑफ अ सीरीज इज 16। और अगर हम लोग सीरीज बोलेंगे तो हमें प्लस का साइन लगा लगा के ही अलग अलग दिखाना होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा दूं, ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं अगर आपकी कोई सीरीज है जैसे कि 1 3 और 5 7, ठीक है, इसको बोलेंगे दिस थिंग इज कॉल्ड एज सीरीज, जिसमें प्लस का साइन लिखा हुआ है, एंड ईच एंड एवरी टर्म, हर एक टर्म स्पेसिफिकली फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मेंशन है वहां पे, राइट। और ये आएगा किसके इक्वल, ये आएगा ऐड करके 16 के इक्वल। इसको हम लोग सीरीज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट इज द सम ऑफ सीरीज। ये सीरीज का क्या है, द सम ऑफ सीरीज, द सम ऑफ सीरीज इज 16। तो जरूरी नहीं है कि 16 और सीरीज का भी सम आ सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर स्पेसिफिक आइटम्स मेंशन है तो देन दैट इज कॉल्ड एज सीरीज, एंड इफ इट इज अ नंबर, इनको ऐड करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज सम ऑफ सीरीज, right? I hope this thing is clear to you all. Any question? So now let us solve some questions based on exercise 9.1. So then the concept we have discussed is then completely clear to you, and you can connect that concept with the questions also. यहाँ तक कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हैं। सिग्मा रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, okay, what is the meaning of this word sigma? So let me tell you again.
सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन का मतलब है, इसका सिंबल तो ये है, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब ये किन वैल्यूज पे है, जैसे मैं यहाँ पे दिस इज द सिंबल ऑफ द सिग्मा, और यहाँ पे होता है एन। ये कहां से शुरू होगा, सपोज 1 से शुरू होगा या किस नंबर से शुरू होगा और कहां पे जाके रुकेगा, n इज इक्वल टू 1 से n तक। और यहाँ पे जो होता है किस पे ये अप्लाई करना है, an पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि n पहले अपनी वैल्यू पुट करेगा 1, तो यहाँ पे इसमें इस एक्सप्रेशन में n अपनी वैल्यू पुट करेगा 1, तो a 1 आ जाएगा, राइट। फिर इसका प्लस वाले, इसका सिग्मा का काम क्या है, इस सिग्मा सिंबल का इसका क्या काम है, इसका काम है प्लस का साइन लगाना। ये हर बार एक नई टर्म जब आती है उसके बीच में प्लस का साइन लगाता है। एन अपनी वैल्यू पुट करता जाएगा, एन अपनी सेकंड वैल्यू पुट करेगा, एन अपनी थर्ड वैल्यू पुट करेगा, और ये समेशन प्लस का साइन लगाता जाएगा, और ये इस तरह से चलता जाएगा यहाँ पे nth टर्म तक। जब n अपनी लास्ट वाली वैल्यू nth वैल्यू पुट कर लेगा, सो बेसिकली इतनी बड़ी सीरीज ना लिख के, सो दिस इज द स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीरीज इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। इसको एक एग्जांपल से समझाऊं आपको तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज एक यहाँ पे सीरीज है, और यहाँ पे an की जगह लिखा हुआ है 2n, ठीक है, 2n लिखा हुआ है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू 4 तक है, 4 टर्म का सम है। तो इसका मतलब क्या है, n पहले क्या करेगा, n अपनी वैल्यू 1 पुट करेगा इसमें, जहां पे भी इसको दिखाई देगा, तो ये क्या पुट करेगा 1। सो लेट मी राइट इट हियर, n को 1 रखता है मैंने, 2 इंटू 1, ठीक है, n ने 1 रख दिया। फिर समेशन का क्या काम है, प्लस का साइन लगाना, n का फिर नेक्स्ट प्लस का साइन लगते ही n का काम है अपनी दूसरी वैल्यू पुट करके आना, तो n को यहाँ पे 2n में दूसरी वैल्यू 2 पुट करेगा अपनी, ठीक है। फिर प्लस लगा दिया समेशन ने, n अपनी 3 वैल्यू पुट करेगा, फिर प्लस लगा दिया समेशन ने, n की जगह 4 पुट करेगा, और 4 पुट करने पे रुक जाएगा क्योंकि इसको मैक्सिमम 4 तक ही पुट करनी है। फिर समेशन प्लस का साइन लगाना भी बंद कर देगा, और ये भी रुक जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। अगर कोई ऐसे लिखी हुई है 2 4 6 and 8, so this can be written like this also in the form of sigma notation। सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। एंड द सम इन दिस केस इज इट इज अ सम, यस। तो n की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, n नेचुरल नंबर, इफ यू लुक एट दिस हियर, यहाँ पे नहीं दे रखा, इफ यू लुक एट, हाँ अगर आप इसको देखेंगे, लेट मी टेल यू हियर, n की वैल्यू 1 ही हमेशा होगी। क्यों, क्योंकि ये जो n का 1 का मतलब है, जब आप, मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, यहाँ पे एक मैं सीरीज लिखता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 5 7 9 और 11, ये मैंने ओड नंबर लिखे, तो यहाँ पे इसका ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है, सेकंड, ये कौन सी टर्म है, थर्ड, ये कौन सी टर्म है, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ऐसे चलते चलते सपोज कोई भी टर्म आ रही है, वो टर्म कौन सी होगी, nth टर्म। तो बेसिकली ये क्या है, ये n की वैल्यूज है। सो दिस इज द n, n मींस कौन सी प्लेस पे आ रही है टर्म, तो टर्म कौन सी प्लेस पे आएगी, फर्स्ट प्लेस पे ही तो आएगी। कोई भी सीरीज चलेगी तो उसकी फर्स्ट टर्म से ही तो स्टार्ट होगी वो सीरीज, 0 से तो नहीं होगी, 1 से तो माइनस में तो नहीं जाएगी सीरीज, तो उसका कोई मेंबर होगा जो फर्स्ट मेंबर होगा, तो n बताता है प्लेस, तो ये इसलिए 1 से शुरू होता है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यस सही है। तो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट यहाँ पे n, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 1 ले रहा हूं, एंड इट इज अ नेचुरल नंबर। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि जो पोजीशंस होती हैं, ये पोजीशन बताता है n, तो n पोजीशन बता रहा है, तो पहली एलिमेंट की फर्स्ट मेंबर हो गया, पहला पोजीशन हो गई 2, ठीक है, और दूसरी पोजीशन हो गई 4, तो इनके बीच में तो नहीं कोई फंसेगा कि ये इसकी 1.5 पोजीशन आई है। जैसे क्लास में आपकी पोजीशंस आती हैं, कोई फर्स्ट पोजीशन पे है, इसकी सेकंड पोजीशन आई है बच्चे की, इस बच्चे की थर्ड पोजीशन आई है क्लास में, ऐसा तो नहीं होता कभी, कई बार कभी भी कि इसकी 1.5 पोजीशन आई है, या इसकी पोजीशन फर्स्ट से कम होकर 0 पोजीशन पे आ गई ये, या इसकी पोजीशन -1 आई है, समझ रहे हैं आप? तो इट इज लाइक अ पोजीशन इन योर क्लास। सो n की वैल्यू इसलिए 1 से शुरू होती है, एंड इट इज अ नेचुरल नंबर, राइट।
I hope this thing is clear to you. So this is all about the concept that we are going to use in the exercise questions to solve the question from exercise 9.1. So let's start with this exercise. So look at this question number 1 here. Write the first 5 terms, each of the sequence in question 1 to 6 whose nth term is given. So exercise 9.1 करने वाले हैं हम लोग. इस क्वेश्चन 1 देखिए आप. क्वेश्चन 1 में nth term given है. nth term मतलब जनरल टर्म गिवन है and all that things जनरल टर्म, what is the meaning of nth term, what is the meaning of sequence, what is the meaning of series, that we have already discussed, right? अब हमें पहली 5 टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है. आई डोंट थिंक सो. हाँ, पहली 5 टर्म का मतलब है A1, A2, A3, A4 and A5. So if I replace this n with 1 on this side, so I need to replace on the right side also. तो यहाँ पे राइट साइड में जहां पे भी मुझे n दिखाई देता है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो n क्या होगा? 1 होगा. n की पोजीशन 1 होगी, राइट? सो इट्स 1 + 2 = 3. व्हाट इज द सेकंड टर्म? n की जगह पे 2 रख दीजिए. यहाँ पे जहां पे भी आपको n दिखाई देता है वहां पे 2 रख दीजिए. इट्स 2 + 2 8. 3 फाइंड करना है तो n की जगह पे 3 पुट कर दीजिए. इट्स 3. 3 + 3 = 3 plus it's 2. 3 + 2 5 3 जा 15. एंड फोर्थ फाइंड करना है तो इट्स 4 + 2 6 4 जा 24. एंड फिफ्थ टर्म 5 5 + 2 7 5 जा 35. So like this you can find the terms, right? I don't think so you have got any problem in this question. So what is the first term? Anyone, could you please tell me the first term in this case? 1/2. Yes, 1/2. And 1 the upon second 2. term? Anyone? So what? Second term. Tell me the second term. 2/3. 2/3. n की जगह पे रख दीजिए. 2 n की जगह पे 3 रखेंगे तो इट्स 3/4. 3/4. And it's 4/5. It's 5/6. Like this. Look at this. What is the first term in this case? 2 power 1. Second term 2 power 2. Third term 2 power 3. Fourth term 2 power 4. Fifth term 2 power 5. I hope this question is clear to you. So like this we can find out the terms. So now look at this question 4, 5 and 6. Try to solve this question on your notebook. Write this on your notebook and try and find these terms by yourself. Find all the terms by yourself in this question 4, 5, 6. Then this concept will be more clear to you how to find out the terms. So write it on your notebook and find it. Write it on your notebook right now and find it. अभी आप इसको करिए side by side. Yes, I hope you have done it. What is A1 in this case? Anyone? A1, A2, A3, A4 and A5. Yes, tell me. A1 is -1/6. Okay. A2. A2 is 1/6. Okay. A3 is 3/6. Okay. A4 is 5/6 and A5 is 7/6. Okay. So now tell me in the question 5. I hope question 5 आप लोगों ने कर लिया होगा. A1, A2, A3, A4 and A5 in this case. बताइए. So A1 is 25. A1 is 25. Okay. A2. A2 -125. A2 -125. Okay. A3. 625. Okay. A4. A4 is -3125. A5. So 15625. 1525. Right? Okay. So I hope you know how to No, find so it. 15625. 15625. Right. Yes.
ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अगर आपने अपनी नोटबुक में किया है खुद से। तो अब इसकी वैल्यू बताइए, एनीवन टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस। Sir, 3/2. ओके And then 9/2. ओके 21/2. ओके 21. 21/2। Yes, sir. Then 21. A4, what is A4? Sir, 21. 21. A5? 75/2. 75/2. Okay, so I haven't explained this question. I hope you all have done this. So now let's move to the next question. So yeah, I think it's time up. The rest of the thing we will discuss in the next class.